Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, as all of you are aware, we introduce companies, from emerging market segments and talk to the promoters, the top managements of such companies, so that all of us can understand these companies in a much better way. And a lot of valuable information is shared by the top managements in such interviews. So, going forward, today also we have got a very interesting company which is already listed in the Indian capital markets. The company's name is Continental Petroleum Limited, and we have the privilege and pleasure of having the director and CEO of the company, Mr. Navneet Khandelwal. Navneet ji, बहुत बहुत welcome, sir. Thank you very much for your time. We'll definitely like to get good quality information from you about the company. Yes, sure. Thank you, Avinash, for having me at this virtual meet. And I would like to introduce myself, Navneet Khandelwal. I am the director and CEO of the company, Continental Petroleums Limited. Continental Petroleum Limited is a diversified company poised for sustainable growth, leveraging strategic investments in high margin products, segments like hazardous waste management and R&D driven product differentiation. The company's focus on maintaining execution timelines, navigating regulatory framework, and achieving its ambitious financial milestones. I So, like to brief details about the three verticals that the company is working. yeah, एक तो ल्यूब्स एंड ग्रीसेस के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स डिफरेंट डिफरेंट छोटे से बड़े पैक्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इन बहरोड रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया इन राजस्थान okay, and our factory is in 20,000 square meter of area. And secondly, our second vertical is EPC projects, power and solar. इसके अंदर हम लोग सारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन टर्न की प्रोजेक्ट्स पावर संबंधित एनर्जी सेक्टर के लिए करते हैं विच इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड सोलर okay. थर्ड वर्टिकल इज हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट Rajasthan, including Rajasthan, we dispose their hazardous waste in our plant, and we are the authorized, only authorized person from the ministry uh, and was formed in 1986. Actually, में हम लोग use था. The founder of the company, Mr. Madan Lal Khandelwal, he's my father, and he's a mechanical engineer from IIT Delhi. And he started this company. I am the second generation Okay. who is taking forward this company. So, Yeah. no, understood. Navneet ji. Navneet ji, now second question, which is very pertinent. Now, within the three verticals, I believe the lubricant vertical is the single most largest vertical. So, how is that business positioned in the domestic market? Sir, इसका मार्केट में हमारी कंपनी का क्या पोजीशनिंग है? इसके बारे में कुछ बताइए. कितने एसक्यूज है? हम लोग कौन कौन से सेगमेंट्स को केटर करते हैं? सर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप दे दें. Yes. ल्यूब्स एंड ग्रीसेस के बारे में मैं बताता हूँ अविनाश जी एक्चुअली में हम लोग ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल दोनों लुब्रिकेंट्स बना रहे हैं और ऑलमोस्ट 150 से ऊपर फॉर व्हीकल्स ट्रैक्टर एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर हम लोग ट्रैक्टर्स के लिए ऑयल्स बनाते हैं पर्टिकुलरली मल्टीपर्पस ऑयल्स फॉर ट्रैक्टर लाइक यूनिवर्सल ट्रांसमिशन ऑयल्स एंड सेकेंडली टू व्हीलर्स के लिए हम लोग सारे ऑयल्स बनाते हैं विच इज 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक ऑयल्स प्लस दी स्कूटर ऑयल्स दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड इसके अंदर सारी पैकिंग है फ्रॉम 1 लीटर 800 ml to 900 ml टू फर्दर अप टिल 180 kgs एंड 210 liters of barrels. ये पैकिंग साइज है प्लस वी आर ऑल्सो कैटरिंग टू इंडस्ट्रियल डिमांड्स like bulk transformer oils, transmission oils, heat transfer oils, plus आपके ग्रीसेस हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. वी हैव 5 प्लांट हैं हमारे पास ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग के और इसमें हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम कस्टमाइज ग्रीसेस बनाते हैं
हाँ, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ग्रीसेस भी बना रहे हैं हम लोग, सो टू इम्प्रूव द मार्जिन्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, और पर्टिकुलरली ग्रीसेस और बल्क बल्क ऑयल्स के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे आसपास लगता है, वी कैटर टू ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। एंड सिंस लॉजिस्टिकली वी आर वेल पोजिशनड क्लोज टू गुड़गांव, मानेसर एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, so we have a huge area we are covering as far as the industries are concerned. तो अच्छा नवनीत जी, नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा जो लुब्रिकेंट का जो मेन प्रोडक्ट वर्टिकल है सर, इसमें किस प्रकार का प्राइसिंग होता है? इज इट कॉस्ट प्लस मार्जिन? बिकॉज ऑब्वियसली इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस। सो फॉर लार्ज बल्क कस्टमर्स, डू यू हैव एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, और बेसिकली इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, लाइक वट एवर इज द प्रिवेलिंग रॉ मटेरियल प्राइस, उसका कन्वर्जन करके फिर आपका सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करते हो? सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर दैट योर रेगुलर कस्टमर्स, यू मस्ट बी गिविंग देम लुब्रिकेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्लस नए कस्टमर्स होंगे। Right. प्राइसिंग सर कैसे डिसाइड होता है? आई मीन, इज इट डायनामिक, और इज इट डिसाइडेड कि भाई ये वॉल्यूम कस्टमर है तो इसको इतना क्वांटिटी देना है, तो वी हैव टू फिक्स अ पर्टिकुलर प्राइस? डज इट वर्क लाइक दैट इन आवर इंडस्ट्री? Avinash ji, I'm not able to hear you, but anyways, I understood your question. या I'll break it up in two parts. या हाँ, दो पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक करता हूँ सर। जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू बेच रहे हैं, हमारे खुद के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, विच इज ऑलमोस्ट 25 प्लस सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 200 to 250 रिटेलर्स। तो वो जो पैकिंग हम बेचते हैं, जितना भी पैक्ड लुब्रिकेंट्स हैं, वो जनरली वी डोंट चेंज द प्राइजेस एवरी मंथ और समथिंग। लेकिन हम लोग उसको डिपेंडिंग ऑन दी क्रूड प्राइजेस एंड द बेस ऑयल प्राइजेस इंटरनेशनली, उसके हिसाब से मे बी क्वार्टरली और हाफ ईयरली हम लोग उसको प्राइजेस को अप एंड डाउन करते ओके, हैं, विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स दैट वी गिव। So ओके, one is this segment that we are catering, and we do the pricing accordingly. So ओके, it's mostly the pricing is based on the base oil prices, which ओके, are domestically the oil companies and Korea refine. Secondly, जो normally the prices of the bulk oils change every first of the every month. तो जो बेस ऑयल प्राइसेस अगर चेंज होती हैं, तो वो प्लस माइनस जो प्राइस वेरिएशन होता है, वो पार्टी के साथ हमारा फिक्स होता है। इवन दे आर वेरी अवेयर, बिकॉज नाउ सिंस इट्स अ डिजिटल एरा, प्राइसिंग कोई छुपी हुई नहीं है। एवरी बेस ऑयल प्राइसेस आर कमिंग इन द मार्केट एंड एवरीबडी कैन हैव एक्सेस टू इट। तो वो प्राइजेस हम लोग प्राइस वेरिएशन का एक क्लॉज डाल के हम लोग उसको प्राइस वेरिएशन के अंदर रखते हैं, हाँ, विच नॉर्मली चेंजेस ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ओके, Generally, we have long-term agreements in supply of these lubricants. ओके, so understood. Navneet ji, now tell me one thing, that our business is directly a B2B business. Directly हम customers को supply करते हैं या distributors को supply करते हैं जो आगे customers को supply करते हैं? How does the chain work? Like हमारा relationship directly user के साथ है, या बीच में dealer या distributor आता है, उसको हम लोग माल बेचते हैं और वो आगे बेचते हैं? तो how does it work? जो कस्टमर बेस काम है सर, वो हमारा जो पैक्ड लुब्रिकेंट्स का है, वो हम कस्टमर्स B2C जिसको कहते हैं, हम हाँ, लोग डायरेक्ट कस्टमर्स को डील नहीं करते पैक्ड लुब्रिकेंट्स के अंदर। ओके, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में हम लोग डायरेक्ट डील करते हैं, B2B है। ओके, ओके, तो बेसिकली डायरेक्टली B2C नहीं करते, you give it to B2B and then on it बिग goes to the customer, right? इंडस्ट्री। Okay. Okay, now Navneet ji, one question which is very pertinent, from a investor point of view, कि हमने इतने सालों से ये business खड़ा किया है. Of course, lubricant is our mother business. Tell me one thing, sir, how have we offered more value to the customers? Of course, quality of product is good, execution is good. What are the two, three qualitative aspects which you can say कि Continental Petroleum is doing a good job in the market, उसीलिए customer आ रहा है, थोड़ा सा repeat business भी हमको मिल रहा है? सर दो तीन चीजें हमको बताइए जिससे हमको पता चले कि कंपनी काफी मेहनत भी बहुत कर रही है, जिससे कि कस्टमर रिटेंशन भी हो रहा है और कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है। ओके,
Avinash ji, I'll tell you कि since 1986 we started into this used oil and waste oil refining. After that we shifted our focus into packaged lubricants. और सिंस देन हम लोग जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं स्पेशली, तो वी आर बेसिकली इनटू द ऑर्गेनाइज सेक्टर. दैट टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाज वेरी बिग, बट आफ्टर द जीएसटी regime and all, the unorganized sector has की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर 20-25 years ओल्ड इन आवर कंपनी. सो विद दैट यू कैन हैव अ फीलिंग दैट कि वो 25 साल से 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम क्वालिटी दे ही रहे हैं, तभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जो हम लोग एडिटिव्स यूज करते हैं इंजन ऑयल्स के अंदर, आपके डीजल इंजन ऑयल्स, पेट्रोल, आज मतलब हमारे जो हायर रेंज के लुब्रिकेंट्स बाजार में है, कैस्ट्रॉल है, गल्फ है, वो लोग भी यही एडिटिव यूज करते हैं. बट वी हैव निक विद देम कि हमारा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो कम है, और हम लोग बेटर हम लोग सर्विस दे पाते हैं एट अ लोअर कॉस्ट. अच्छा नवनीत जी, मेरे को बताइए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा. सर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, नवनीत जी मुझे बताइए कि इंडिया में आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल डीजल का इंजन की जो गाड़ी है, उसको कोई बड़ा खतरा है अगले 10 साल 15 साल में, या ये भी ऑन द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगी? आई मीन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द फ्यूचर. But do you think in India it will happen fast, or it will take a very long time to get normal in a country like India? मेरे ख्याल से सर देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर तो है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड सेकेंडली, इंडिया के अंदर वो कितना फास्ट ग्रो करेगा, वो एक थोड़ा सा पॉइंट है. बिकॉज अपनी कंट्री के अंदर सर जो अपर मिडिल क्लास है, वो लोग कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाते हैं. बिकॉज मतलब टू से जनरली 80% अपने में पॉपुलेशन ये वो है जो जिंदगी में एक बार गाड़ी खरीदता है. इट्स नॉट इजी टू चेंज दैट व्हीकल, because they buy it with that vehicle for a lifetime. तो एक तरीके से ईवी जो अभी चल रहा है वो अर्बन एरियाज के अंदर उसका पकड़ काफी है. बट डाउन द लाइन आई थिंक फॉसिल फ्यूल्स अभी कहीं नहीं जा रहे सर. मेरे ख्याल से 10-15 साल 20 साल कहीं नहीं जाएंगे. और अल्टीमेटली मेरा जो सोचना है कि टेक्नोलॉजिकल वाइज स्टैंड अलोन ईवी विल नॉट बी एज बिग एज सक्सेस एज द हाइब्रिड. जो हाँ. हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो सक्सेस ज्यादा रहेंगे सर उसके ओके. अंदर. ओके. तो उसमें अल्टीमेटली दोनों चीज चलेगी, ईवी भी चलेगी और फॉसिल फ्यूल भी चलेंगे, फॉर अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. नहीं, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड. नवनीत जी, अभी मेरे को थोड़ा सा फिनेंशियल्स के बारे में बताइए. मैं देख रहा था कि FY 24 में हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू कम था, 53 crores फ्रॉम 99 crores, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज आल्सो रफली अबाउट 2.8 crores, जो पिछले साल 3.8 crores था. तो पहले नवनीत जी बताइए कि पिछले साल ऐसा क्या हो गया कि जिससे रेवेन्यू भी कम था, प्रॉफिट भी कम था? एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई दिस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? उसका मैं कारण अविनाश जी बताता हूँ. हम लोग क्या है, जो बल्क सेल्स जो इसकी कर रहे थे ट्रांसफार्मर ऑयल्स की और इनकी, वो उसके अंदर क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा बढ़ गई और मार्जिन्स कम हो गए उसके अंदर एक्चुअली में. तो वो जो पर्टिकुलरली जो ट्रांसफार्मर ऑयल्स के एनर्जी सेक्टर के अंदर जो सेल थी, वो हमने रिड्यूस की, सो दैट वो जो फंड्स हैं जो वो हम लोग दूसरी जगह हायर मार्जिन्स के अंदर लगा सकें. वो सेल कम होने से हमारी जो टॉप लाइन है वो थोड़ी सी कम हो गई. बट दैट वाज फॉर फॉर अ करेक्शन फॉर आवर ओन गुड that we wanted to do. And finally this year you will get to see very good results. नहीं, आई थिंक यू आर राइट नवनीत जी, क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले 9 महीने में आपका नंबर बहुत अच्छा है. 86 crore का टॉप लाइन है, 3.9 हम्म. crore का प्रॉफिट भी आया है. तो सर ये जो करेक्शन आपने किया, आई थिंक दिस वाज पॉसिबली द रीजन व्हाई इंप्रूवमेंट हैज कम इन. टेल मी नवनीत, बिल्कुल अविनाश जी. व्हाट इज द आउटलुक फॉर द करंट ईयर? अभी तो मार्च ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका है. विदाउट गिविंग अ नंबर, आप डिस्क्राइब नहीं, दैट. बिल्कुल यू विल सी मोर देन 50%, 100% इंक्रीज. Okay, चलो very बढ़िया सर. I think very nice to hear. Sir, now tell me one thing. Normally in our business, what is the working capital cycle? हमारा working capital cycle सर कितना लंबा है?
रफली? मैं इसको तीन पार्ट्स में अगेन डिवाइड करूंगा सर। ल्यूब्स एंड ग्रीसेस के अंदर हम लोगों का जो वर्किंग साइकिल है वो करीब 100 to 120 डेज रहता है। और जो हमारा ईपीसी बिजनेस है उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट से पेमेंट्स रहती हैं, तो जनरली 60 to 70% पेमेंट्स और हम लोगों को इमीडिएट मिल जाती है 15 to 20 डेज के अंदर। बाकी जो 30 to 40% पेमेंट है उसमें जनरली जो क्लस्टर्स होते हैं काम के, वो क्लस्टर्स जब पूरे होते हैं तब वो हमारे को गवर्नमेंट देती है। तो वो क्लस्टर्स पूरे होने में उसका अगर एवरेज साइकिल निकाला जाए तो वो भी करीब 100 से 120 दिन चले जाता है सर। ओके। और जो हमारा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का काम है जो थर्ड रेट के, उसमें कोई इतना बड़ा हमारा साइकिल नहीं है। मैक्सिमम 15 to 20 डेज का पेमेंट्स का। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, हम्म, जब आपने हम्म। दोनों बिजनेसेस के बारे में बातचीत की है नवनीत जी, थोड़ा सा हमको बताइए सर, व्हाट इज द आउटलुक फॉर द हैजार्डस बिजनेस एज वेल एज फॉर द ईपीसी बिजनेस? इसमें सर कंपनी क्या सोच रही है कि ये लुब्रिकेंट को क्या सपोर्ट ही करेंगे कि आगे यहाँ से भी ग्रोथ अच्छा आएगा, आपको लगता है? सर मेरे ख्याल से जो हम लोग देख रहे हैं हैजार्डस वेस्ट का जो बिजनेस है वो कंपनी के लिए बहुत प्रॉमिसिंग और फ्यूचर वाला बिजनेस है। उसके अंदर हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं फ्रॉम द करंट कैपेसिटी। वी आर कमिंग अप विद वन मोर प्लांट इन नियर चित्तौड़गढ़। ओके। और उससे जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% करंट टॉप लाइन से और बढ़ जाएंगे। हाँ। और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमारे काफी अच्छे हैं तीनों वर्टिकल के अंदर। ओके। सबसे हाईएस्ट हमारे हैजार्डस वेस्ट के अंदर ही हैं। ओके। और इस के अंदर। और सेकेंडली जो ईपीसी का जो बिजनेस है सर उस वर्टिकल के अंदर वो काफी हमारा हेल्प कर रहा है टर्नओवर टॉप लाइन इंप्रूव करने के लिए और मार्जिन्स भी। बिकॉज हम लोग उसके अंदर जो टेंडर्स बिड कर रहे हैं अभी करंटली जो हमारे टेंडर्स इन हैंड हैं वो 200 करोड़ से ऊपर के हैं। और जो हमने बिड कर रखे हैं वो ऑलमोस्ट 200 से 250 करोड़ रुपए के ऑलरेडी बिड कर रखे हैं। ओके। और एनी टाइम वी विल गेट ऑर्डर्स इन दैट part also. And we see a very good margins from there, 15 to 18% के करीब हम लोग ओके। उसके अंदर फोर्सी कर रहे हैं। ओके। So all the three verticals will enhance the growth in the company, sir. मेरे को बताइए सर, अभी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, अगर आप थोड़ा सा आइडिया दो कि हाउ मच मनी हैव वी स्पेंड फॉर एनी एसेट बिल्डिंग, लाइक नई एक्सपेंशन के लिए कहीं पैसा लगाया है, या अगले साल आप थोड़ा सा जो बोल रहे हैं कि हैजार्डस वेस्ट के लिए आप नई चित्तौड़गढ़ में फैक्ट्री लगा रहे हो। सर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने प्लान किया है अगले साल के लिए, एटलीस्ट इफ यू कैन कमेंट फॉर 26 मोटा मोटी? जो करंट फाइनेंशियल ईयर है सर जो अभी चालू हो गया, हाँ। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इट विल बी ऑलमोस्ट 20 to 25 करोड़ सर। ओके। फॉर दी या तो एक एक तो जो यूनिट में आपको बता रहा हूँ हैजार्डस वेस्ट की, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। प्लस जो हम लोगों का जो लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस का जो प्लांट है उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और हाई न्यू टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। सेकेंडली जो हमारी लैब है उसको हाईटेक कर रहे हैं। एनएबीएल भी मिल जाएगा हमारे को इस साल, वी हैव प्लान दैट आल्सो। ओके। सो वील बी वर्किंग मोर टुवर्ड्स द आर&डी इनटू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, तो उसमें काफी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और नवनीत जी, जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन सर, ये जो 20-25 करोड़ है, इसमें क्या हम ये मान के चले कि ज्यादातर इंटरनल एक्रूवल और थोड़ा डेट फंडिंग से ही आप फाइनेंस करोगे, या विल यू लुक एट इक्विटी आल्सो इफ पॉसिबल? हम लोग काफी तो इन्वेस्टमेंट खुद के उससे इंटरनल से करेंगे। हाँ। और हम लोग प्रेफरेंशियल इशू भी प्लान कर रहे हैं। तो ओके। उस उससे भी थोड़ा बहुत करेंगे। और टर्म लोन हम लोग ले नहीं रहे अभी प्रेजेंटली, वी हैव नॉट प्लान्ड एनी लोन और समथिंग। ओके। बट मोस्टली इट विल बी इंटरनल एक्रूवल्स। समझ गए। ठीक है। नवनीत जी, अभी काफी टाइम से शेयर होल्डर्स आर वेटिंग फ्रॉम यू दैट कंपनी विल रिवॉर्ड देम विद गुड डिविडेंड्स, ग्रोथ। तो सर मेरी बात बताइए, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको शेयर होल्डर्स को क्या मैसेज देना है? बिकॉज यू ऑल हैव बीन इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू अंडरस्टैंड द यस। बिजनेस वेल। सर, व्हाट वुड बी योर ब्रॉड मैसेज टू द शेयर होल्डर्स हु हैव सपोर्टेड यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम?
Sir, I'm very thankful all the stakeholders who have supported us till now. Or I think now the time has come that we all will be happy and we all will be rewarded, sir. ठीक है सर, बढ़िया, अच्छा है सुनने के लिए। सर आखिरी सवाल आज का, सर हमने कोविड देखा है, अभी बाय गॉड्स ग्रेस सर एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल। मेरे को बताइए सर, हमारे धंधे में अगर हमको प्रॉफिटेबल रहना है तो सबसे बड़ा हमारे धंधे में रिस्क क्या है? इज इट एग्जीक्यूशन रिस्क, इज इट रॉ मटेरियल रिस्क, या कोई टेक्नोलॉजी रिस्क है? सर हमारे धंधे में रिस्क क्या प्रकार का होता है, और उसको आपने कैसे ऑप्टिमली इतने सालों से मेंटेन किया है? ओके। जो ल्यूब्स एंड ग्रीसेस के अंदर है सर, देखो उसमें तो जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है वो बेस ऑयल है। तो वो जनरली इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड डॉलर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से ही इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल। उतना उसमें रिस्क हमारे को है नहीं, क्योंकि ऑयल कंपनीज भी बेस ऑयल देती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इट इज लाइक we don't change the prices as I told you so fast in हाँ। packed lubricants. हम्म। तो उतना हम कुशनिंग रखते हैं, तो that risk we cover with the margins that we have already added. या। तो उसके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। इट इज ओनली दैट इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो जाए तो डिमांड कम हो जाए, तो वही एक रिस्क है, बाकी तो और कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल। हैजार्डस वेस्ट में अगेन इट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बेस्ड है, तो वो भी उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा रिस्क नहीं है। ईपीसी के अंदर एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस, आई विल टेल यू। ओके। ईपीसी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसको जितना हम टाइमली एग्जीक्यूट कर लें, जितना गवर्नमेंट से जितनी उनके टाइम पीरियड में हम लोग काम कर लें, जितना फास्ट काम कर लें, तो वो ही रिवार्डिंग होता है सर। जितना अगर लेट होता है प्रोजेक्ट, तो उसमें फिर पेनल्टीज और इसका रिस्क रहता है। ओके, अदरवाइज द रनवे इज वेरी क्लियर कि आगे हाँ, कम। अदरवाइज द रनवे इज वेरी क्लियर सर। एनीवे सर, नाइस टू टॉक टू यू नवनीत जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आई एम वेरी हैप्पी दैट सर अच्छे तरह से आपने कंपनी के सारे डिविजन्स के बारे में हमको जानकारी दी, विच ऑल आवर व्यूअर्स विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। सर प्लीज एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू यू, एंटायर मैनेजमेंट टीम, एंड सर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू इन फ्यूचर आल्सो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Avinash ji, for having me here, and thank you for such a nice interview. And I would like to again join if any, if given a chance again. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Namaskar. नमस्कार। Namaskar.